Hi, this is Muhyiddin Shak. Today I'm going to teach you the simple present tense passive voice. Before this video, I have made a video on the topic of transitive verb and intransitive verb. Before you watch this video, if you really want to understand the passive voice by 100%, I would recommend you must watch the video of transitive verb and intransitive verb. That gives you clarity how to use a verb in order to form the passive voice, right? So guys, if you have not watched that video, you go and watch the video of transitive and intransitive verb. The link has been given below. Let me explain to you first, where do we use the passive voice? We speak a sentence in order to convey some message. So whenever you want to convey the message about the subject and the verb, the action, you have to use the active voice. But whenever you have to convey the message about an object and the action of the object, you have to use passive voice, right? If you don't know this, you will end up using the passive voice at the wrong place. So you must understand, whenever you want to convey the message regarding the object and its action, you will be using the passive voice. And today I'm going to teach you the very first passive voice, that is simple present passive voice. We will be learning its rules, how to use them, where to use them, and we will practice the practice sentences, and then at the end we will see the difference between the active voice and the passive voice. If you really want to have the deep understanding about passive voice, then I would suggest you watch this video till the end. After watching the entire video, I promise you, you will be able to understand by 100% what is the active voice and what is the passive voice, and there will be no confusion, and you will be able to use it effortlessly. So guys, without delaying, let's begin this session. Simple present passive voice. So we will try to understand what is simple present passive voice. अब हम लोग सीखेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि simple present passive voice क्या है. So let's read out the definition first. The simple present tense passive voice is used to describe a habit or custom which is done regularly or habitually or occasionally. Simple present tense passive voice का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब अ हैबिट, एक ऐसे आदत को बताने के लिए या फिर ऐसे कस्टम जो चीज बार बार होती है उसको बताने के लिए, विच इज डन, जिसे किया जाता है रेगुलरली, बराबर बार बार, और हैबिचुअली आदत के तौर पे, या फिर ओकेशनली कभी कभार. सो अगर आपको ऐसे चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना है जिसे बार बार किया जाता हो प्रेजेंट के अंदर में, या जो आदत के तौर पे बार बार होता हो या कभी कभी होता हो, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस का यूज करेंगे. इफ यू ट्रांसलेट इन हिंदी, द मीनिंग विल बी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कंप्यूटर्स बेचा जाता है. इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी के अंदर, इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी में पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाया जाता है. हर महीने के फर्स्ट को हम लोगों को सैलरी दिया जाता है. सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट डाउन ओवर हियर, किया जाता है, काम किया जाता है. सो इफ एनी सेंटेंस इन हिंदी, किसी भी सेंटेंस के आखिर में हिंदी के अंदर में किया जाता है, वो
तो आपको पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस है। नाउ वी विल लर्न द रूल ऑफ द सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस। लेट्स हैव अ लुक। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमें सब्जेक्ट के बारे में और उसके एक्शन के बारे में बताना हो तो हम एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं, लेकिन जब हमें ऑब्जेक्ट और उसके एक्शन के बारे में बताना हो तो हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। नॉर्मल इंग्लिश के अंदर में यहाँ पे भी लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट लिखा है। उसकी वजह ये है कि ये रियली ये कोई सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट से आपकी मुराद काम करने वाला है तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैसिव वॉइस के अंदर में कोई काम करने वाला नहीं होगा। जिस पे काम किया जाता है वो होगा। जैसे मैं इंग्लिश सिखाता हूं, सिखाने वाला कौन है? मैं। सो मैं इंग्लिश सिखाता हूं। सो मैं, यहाँ पे जो आई है मैं, वो सब्जेक्ट है, क्योंकि सिखाने का काम मैं कर रहा है और सिखाना वर्ब है, राइट? और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। सो वो एक्टिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस के अंदर में मुझे इंग्लिश सिखाया जाता है। अब यहाँ पे जो मुझे है वो इंग्लिश नहीं सिखाता है, जो इंग्लिश सिखाने का काम मुझे पे हो रहा है। मुझे इंग्लिश सिखाया जाता है। सो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर में। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? हम रूल्स पढ़ेंगे, सीखेंगे और उसके बाद सेंटेंस भी बनाएंगे। तो लेट्स लर्न द रूल। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, राइट? ग्रामर की किताबों में और बहुत सारे टीचर्स उसको सब्जेक्ट बोल के सिखाते हैं, लेकिन आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ओवर अ डिकेड or and my experience has been that when you say subject over here and there, students get confused. इसलिए मैंने जो रियली एक्चुअली वो सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट ही होता है। पहले आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है जिसपे काम होगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एम, इज, आर का यूज करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। यहां आप एक बात समझ ले, सारे पैसिव वॉइस के अंदर में वर्ब्स का थर्ड फॉर्म यूज होगा, मींस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मींस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिस इज द थंब रूल, irrespective of present past future। टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है या आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाना हो, लिखना हो, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। बेयर इन माइंड, उसको आप दिमाग में रख ले। तो पहले अफर्मेटिव के अंदर में ऑब्जेक्ट का यूज होगा और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम एम, इज, आर का यूज करेंगे एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू से दैट हम लोगों को ग्रामर सिखाया जाता है। किसको सिखाया जाता है? हम लोगों को। तो वी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले वी आ जाएगा, ठीक है? वी और वी के साथ में एम, इज, आर के अंदर आर का इस्तेमाल होता है, तो सेंटेंस हो जाएगा वी आर टॉट इंग्लिश। इंग्लिश इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट, सो वी आर टॉट इंग्लिश। तुम्हें गाली नहीं दिया जाता है, सो यू आर नॉट अब्यूज्ड, राइट? खाना 12 बजे सर्व किया जाता है, द फूड is served at 12 o'clock. So this was the rule of affirmative sentence. Interrogative sentence means when you have to ask a question to someone, आपको किसी से सवाल करना हो तो याद रखें पहले एम, इज, आर का यूज होगा। अगर आपको कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, जैसे कब, कहां, कैसे, क्या, क्यों, कितना, इसको इंटीग्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, सो दीज आर द इंटीग्रेटिव प्रोनाउंस। सो अगर इंटीग्रेटिव प्रोनाउन का आपको यूज करना है तो वो एम, इज, आर से पहले आ जाएगा, राइट?
सो पहले आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज कर ले, फिर एम इज आर में अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मुताबिक इसमें से कोई एक यूज होगा, और फिर पास्ट पार्टिसिपल। अगर कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है तो सेंटेंस इज एम आर से शुरू होगा। जैसे आपको बोलना हो क्या मुझे डांटा जाता है, इंग्लिश हो जाएगा एम आई स्कोल्डेड। डांटने की इंग्लिश स्कोल्ड है, सो एम आई स्कोल्डेड। क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़ाया जाता है, सो आर यू टॉट इंग्लिश। सैलरी कब दिया जाता है, अब मैंने कब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया, तो वो इज एम आर से पहले आ जाएगा। तुम्हें सैलरी कब दिया जाता है, सो व्हेन आर यू गिवन सैलरी। सिंपल, व्हेन आर यू गिवन सैलरी। व्हेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, एंड देन यू इज द ऑब्जेक्ट। सो व्हेन आर यू गिवन, तुम्हें कब दिया जाता है, सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, सैलरी, सो सैलरी लास्ट में आ जाएगा। सो व्हेन आर यू गिवन सैलरी, तुम्हें सैलरी कब दिया जाता है। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस में कोई सेंटेंस बनाना हो तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आप एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट का यूज करेंगे, और देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। जैसे बोलना है आपको कि मुझे पनिश नहीं किया जाता है, तो पनिश का एक्शन मुझ पे नहीं किया जाता है, सो आई एम नॉट पनिश्ड, मुझे पनिश नहीं किया जाता है। राजू को नहीं पीटा जाता है या राजू को नहीं मारा जाता है, राजू इज नॉट बीटेन। ब्रेकफास्ट नहीं पकाया जाता है, नाश्ता नहीं पकाया जाता है, सो द ब्रेकफास्ट इज नॉट कुक्ड। So this was the rule of the simple present passive voice. How to make a sentence in affirmative, how to make a sentence in interrogative, and how to make a sentence is negative. I believe by now you have understood the rule of simple present passive voice. अब हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ऑलराइट, तो इस सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करें। फर्स्ट मैं इस सेंटेंस को पढ़ूंगा और आप ध्यान से सुनिए, मेरे साथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर दूसरी बार वॉच कीजिए, इस वीडियो को देखिए, और जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस है उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि समझना इज नॉट एनफ, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट एनफ। समझने के साथ साथ आपको इस रूल्स को, सेंटेंसेस को अपने ब्रेन में इंस्टॉल करना है और फिर आपको उसको डिलीवर करना है। सो देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ लर्निंग। फर्स्ट अंडरस्टैंड, सेकेंड इंस्टॉल इन योर ब्रेन, एंड थर्ड डिलीवर इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। द सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई एम इनकरेज्ड टू डू गुड डीड्स। मुझे हिम्मत दिलाया जाता है, मुझे प्रोत्साहित किया जाता है टू डू करने के लिए, गुड डीड्स अच्छे कर्म, मुझे अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ही इज सस्पेक्टेड फॉर ऑल क्राइम, ही इज सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट मीन्स शक करना, सो ही इज सस्पेक्टेड, उस पे शक किया जाता है, फॉर ऑल क्राइम, सारे जुर्म के लिए, सारे जुर्म के लिए, सारे क्राइम के लिए। फार्मर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय पॉलिटिशियंस, किसानों का शोषण किया जाता है पॉलिटिशियन के जरिए। एक्सप्लॉइट मतलब मजबूरी का फायदा उठाना, किसी का नाजायज फायदा उठाना, तो किसानों का नाजायज फायदा उठाया जाता है पॉलिटिशियन के जरिए। इंग्लिश इज टॉट इन इंटरनेशनल स्पीकर्स अकेडमी, इंटरनेशनल स्पीकर्स अकेडमी में इंग्लिश सिखाया जाता है, इंग्लिश सिखाया जाता है इंटरनेशनल स्पीकर्स अकेडमी में। शी इज एम्बैरेस्ड फॉर हर मिसबिहेवियर, उसे शर्मिंदा किया जाता है उसके बदतमीजी के लिए, शर्मिंदा किया जाता है उसके बदतमीजी के लिए, ये एक ट्रांसलेशन है। अगर आपको बोलना है वो शर्मिंदा हो जाती है अपने बदतमीजी के लिए, उसके लिए भी आप सेम सेंटेंस का यूज कर सकते हैं।
interrogative sentence, how to ask question. Okay, what is taught in International Speakers Academy? What is taught, क्या सिखाया जाता है इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी में? Why is he expelled from class? Expel मतलब बाहर निकालना. Why is he expelled from the class? उसे क्लास से बाहर क्यों निकाल दिया जाता है? Where are patients treated? मतलब इलाज करना. Treat has two meanings, इलाज करना और किसी को छोटा मोटा पार्टी देना भी. तो but over here the meaning of treat is इलाज करना क्योंकि patients है. So where are patients treated? Patient का यानी मरीजों का इलाज कहाँ किया जाता है? Is she criticized for her work? क्या उसे उसके काम के लिए निंदा किया जाता है? क्रिटिसाइज मतलब बुराई करना. सो क्या उसे उसकी बुराई की जाती है उसके काम के लिए? आर यू सप्रेस्ड? सप्रेस मतलब किसी को दबा देना, किसी को दबा के रखना, आगे नहीं बढ़ने दिया जाना. सो आर यू सप्रेस्ड? क्या आपको दबाया जाता है? नेगेटिव सेंटेंस, जब आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो तो आप इस तरह से सेंटेंस बोलेंगे. आई एम नॉट स्कोल्डेड, मुझे नहीं डांटा जाता है. यू आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, तुम्हारा फायदा नहीं उठाया जाता है. वी आर नॉट कंपेल्ड टू फाइट, हमें मजबूर नहीं किया जाता है लड़ने के लिए. कंपेल मीन्स मजबूर करना. सो वी आर नॉट कंपेल्ड टू फाइट, हमें लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है. शी इज नॉट टीज्ड, उसे नहीं चिढ़ाया जाता है. ही इज नॉट डिसीव्ड, उसे धोखा नहीं दिया जाता है. सो दिस वाज द रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. नाउ we will see the question answer, how to ask question and answer. What is taught in International Speakers Academy? International Speakers Academy में क्या सिखाया जाता है? Communication skills is taught in International Speakers Academy. International Speakers Academy में communication skills सिखाया जाता है. Communication skills सिखाया जाता है. What is sold in your shop? तुम्हारे दुकान में क्या बिकता है या क्या बेचा जाता है? Computers are sold in my shop. मेरे दुकान में कंप्यूटर्स बेचे जाते हैं. Why is he beaten every day? उसे हर रोज क्यों पीटा जाता है या वो हर रोज क्यों मार खाता है? He is beaten for his misbehavior. वो अपने बदतमीजी के लिए मार खाता है या फिर उसे उसके बदतमीजी के लिए पीटा जाता है. When is the shop closed? दुकान कब बंद होती है या दुकान कब बंद की जाती है? The shop is closed at 8 p.m. दुकान 8 बजे बंद की जाती है. Are you praised for the good performance? क्या तुम्हारी तारीफ की जाती है? Praise तारीफ करना. So, are you praised for the good performance? क्या आपके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए तारीफ किया जाता है? Yes, we are praised for the good performance. जी हाँ, हमें हमारे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए तारीफ किया जाता है. So guys, this was the rule and the practice sentences of the simple present passive voice. आपने देखा कि इन सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो आप सीख चुके हैं. प्रेजेंट है फिर भी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होगा. So now we will see the comparison between the active voice and the passive voice and try to understand the sentences, right? Try to understand the rules of the active voice and passive voice. अगर आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के फर्क को समझ लेते हैं रूल्स के एतबार से और मीनिंग के एतबार से, then that will be very easy for you to use the active voice and passive voice. So let's get started. He steals money. वो पैसा चुराता है. Money is stolen. पैसा चोरी किया जाता है या पैसा चोरी हो जाता है. इन एक्टिव वॉइस के अंदर में आपने देखा कि सब्जेक्ट है चोरी करने वाला. He steals money. वो चुराता है पैसा. जब काम करने वाला है it means that is active voice. Money is stolen. पैसा चोरी किया जाता है. अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है चुराने वाला
ऑब्जेक्ट है, पैसा जो चोरी होने का जो एक्शन है वो पैसे पे हो रहा है। सो मनी इज स्टोलन, पैसा चोरी किया जाता है। अब हमें पता चला कि ही स्टील्स मनी, वो एक्टिव वॉइस है, इसलिए वो पैसा चुराता है। उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमने एक्टिव वॉइस के रूल्स का यूज किया है और पैसा चोरी किया जाता है। सेंटेंस से पता चलता है कि ये पैसिव वॉइस है, इसलिए पैसिव वॉइस के रूल्स का यहाँ पे यूज किया गया है। एक्टिव वॉइस के अंदर में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में हम इज एम आर लगाते हैं। मनी सिंगुलर है इसलिए उसके साथ में इज लगाया गया है, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन है। शी बैक बाइट्स सीमा, बैक बाइट में चुगली करना, वो सीमा की चुगली करती है। सीमा इज बैक बिटेन, सीमा की चुगली की जाती है। अगेन चुगली करने वाला कौन है? शी है, सब्जेक्ट है यहाँ पे बैक बाइट का काम करने वाला, और फिर सीमा इज ऑब्जेक्ट। सो सेंटेंस से पता चला कि एक्टिव वॉइस है, इसलिए सेंटेंस को बनाने के लिए हमने एक्टिव वॉइस के रूल्स को यूज किया है। यहाँ पे सीमा की चुगली की जाती है। अब सीमा चुगली नहीं करती है, वो चुगली का काम सीमा पे हो रहा है, सीमा की चुगली की जाती है। तो इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने इस सेंटेंस को बनाने के लिए पैसिव वॉइस का यूज किया है, पैसिव वॉइस के रूल्स का। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने अभी सीखा कि अगर पैसिव वॉइस हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वी यूज इज एम आर, तो सीमा सिंगुलर है इसलिए इज का यूज किया गया है, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। They criticize us just for nothing. वो लोग हमारी बुराई करते हैं बिला वजह। सो दे, बुराई कौन करते हैं? वो लोग। तो बुराई करने वाला मौजूद है सेंटेंस में, इससे पता चला कि वो एक्टिव वॉइस है, इसलिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमने एक्टिव वॉइस के रूल का यूज किया है। दे क्रिटिसाइज अस, वो लोग हमारी बुराई करते हैं, जस्ट फॉर नथिंग, बिला वजह। Second sentence, we are criticized for just for nothing. We are criticized just for nothing. हमारी बुराई की जाती है, हम बुराई नहीं करते, हमारी बुराई की जाती है। सो ये बुराई का काम हम पे हुआ। सो इससे पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस है, राइट, क्योंकि सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर हमने जो पैसिव वॉइस का रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका यूज किया। वी आर क्रिटिसाइज्ड, वी के साथ में हमने आर लगाया। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी आर क्रिटिसाइज्ड, हमारी बुराई की जाती है जस्ट फॉर नथिंग, बिला वजह। द टीचर पनिशेज हर एवरी डे, द टीचर पनिशेज हर एवरी डे, टीचर उसे हर रोज पनिश यानी सजा देती है। तो टीचर पनिश करने वाला कौन है? टीचर, राइट। सो इससे पता चल गया कि अगर सब्जेक्ट हो सेंटेंस के अंदर में तो हम एक्टिव वॉइस के रूल्स को यूज करेंगे। फिर उसे हर रोज पनिश करती है, सजा देती है। इससे हमें पता चला कि टीचर, जो टीचर है वो सब्जेक्ट है और पनिश उसका वर्ब है, राइट। सो टीचर पनिशेस हर एवरी डे, टीचर उसे हर रोज पनिश यानी सजा देती है। शी इज पनिश्ड एवरी डे, उसे हर रोज सजा दी जाती है। यहाँ पे जो शी है वो ऑब्जेक्ट है, सजा का काम उस पर हो रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस के अंदर में है। तो हमें रूल से पता चला कि ये पैसिव वॉइस, इसलिए सेंटेंस को बनाने के लिए पैसिव वॉइस के रूल्स का यूज किया गया है। शी और शी के साथ में हमेशा इज लगता है। शी इज पनिश्ड, उसे सजा दिया जाता है एवरी डे, हर रोज। Okay, one more sentence we will see. They explain to you everything. वो लोग तुम्हें हर चीज समझाते हैं। कौन समझाते हैं? वो लोग, यानी सब्जेक्ट है, इसलिए एक्टिव वॉइस का यूज किया गया है। You are explained, अब तुम नहीं समझाते हो, तुम्हें समझाया जाता है। You are explained means तुम्हें समझाया जाता है। क्यों? कैसे पता चलेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद में आर है, फिर थर्ड फॉर्म है। जब ये कंस्ट्रक्शन है तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये पैसिव वॉइस है, और इसका मीनिंग हमारे दिमाग में होना चाहिए कि तुम्हें समझाया जाता है एवरीथिंग, हर चीज। सो गाइस, दिस वाज द रूल ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस, where you have learned
the rules of the simple present passive voice, how to make them, right, where to use them, and the comparison between the active voice and passive voice. I believe by now you will have the clear understanding about the simple present passive voice, and you will also be able to differentiate between the active voice and the passive voice. So guys, keep learning, keep enjoying. If you've not subscribed the channel, do subscribe the channel, hit the bell icon to get the notification regularly, like the video and share with others also.